Assalamualaikum everybody. Welcome to the Kids Study Hub. Today's session 7 and we're gonna study and discuss about very interesting topic of economics. And today is our session number 7. And in yesterday's session we have uh, di- discussed in detail about what is economic system, then what is its kinds, and mixed economic system, Islamic economic system, and other economic systems. And today we are gonna talk and discuss about very new topic different from that. That topic is called, today we're gonna discuss three different topics which are related to each other, kind of, but they are usually they are called laws. The law of increasing return, law of diminishing or decreasing return, and the other one is called PPC, or we can say production possibility curve. These three topics we're going to discuss today. So, without wasting any time, let's begin. Okay, so the first topic we're going to discuss is law for increasing return. What is law of increasing return? First, let's read and learn about who wrote it, and who did all these efforts to make this law. So yeah, let's discuss. The first of all, the definition of this law is classical economists, including Professor Marshall, stated the law in the following words: an increase of labor and capital leads generally to improve the organization, which increase the efficiency of labor and capital. Therefore, in those industries which are not engaged in raising products, and increase in labor and capital generally gives a return increase in more than in its proportion. So its explanation is, firstly, the law of increasing returns takes in on account improved organization of business and enterprise. And the secondly, the law operates only in those industries which are not engaged in raising raw material products. Sorry, I misspelled that word. In other words, the law operates in manufacturing industries and not in extractive industries, mining, fishing, forestry, or agriculture industries. What is increasing return is what is law of increasing return? Let's talk about that. A law of increasing return is the law in which when we increase our labor and capital, it it normally and generally improves the organization. The literal and simple and literal meaning, the if we improve or increase the labor force of our organization or capital of our organization or firm, it generally improves our organization goals, and we can achieve it because we increase the labor force, we increase the human resource in our organization. So it is easily approachable to meet the goals of the company. So it is very helpful to improve the organization if we improve our labor, increase our labor force and capital. So I'm gonna discuss it in order two. So basically, law of increasing return, लेबर के इंक्रीज होने से कैपिटल किस तरह से इंक्रीज होगा, हम इसके ऊपर इसको देखते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये है कि व्हेनेवर वी रेज आवर कैपिटल एंड लेबर फोर्स, हमारा लॉ जो है वो जर्नली, क्योंकि नॉर्मली हम जैसे ही अपनी लेबर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम जनरल वे में बात करें और किसी भी कंपनी को ले लें, तो इस तरह इसको कह सकते हैं कि व्हेनेवर वी इंक्रीज आवर लेबर फोर्स ऑफ आवर कंपनी, हमने अपनी लेबर फोर्स बढ़ाई, तो हम लोग जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने एक अच्छी तरह से अपनी ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाते हैं प्रॉपर। हमारा जो मैकेनिज्म होता है, कंपनी जो फॉलो करती है कि सबसे पहले इंटरव्यूज एंड देन एंड सो ऑन। तो लेबर फोर्स कैसे बढ़ती है कि जैसे ही लेबर फोर्स बढ़ी और स्किल ले सेमी स्किल एंड अनस्किल लेबर्स, हमने अच्छे लेबर्स रखना शुरू किए जिसका एक्सपीरियंस बहुत था, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन हो रही है वो इंक्रीज खुद ही हो जाती है, क्योंकि वो इतने एफिशिएंट वे में, क्योंकि ज़्यादा लेबर्स होते हैं तो ज़्यादा वो उस पर वर्क करते हैं, और इसी तरह हमारी लेबर फोर्स के इंक्रीज होने से प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और एफिशिएंसी की वजह से टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस होती है। वो स्किल लेबर्स अगर ज़्यादा हम हायर कर लेते हैं तो फिर इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग एक मोस्ट एफिशिएंट वे में एक चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इजी कि हम लोग इजीली समझेंगे कि जैसे ही लेबर फोर्स या फिर हमारा हम अगर अपना कैपिटल इंक्रीज करें। अगर आप लोग अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी है और आप लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या मतलब होता है कैपिटल का। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज, कैपिटल और ये तीन चीजें होती हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल जो होता है इसको हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं। अगर जो थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता दूं, ओनर इक्विटी जो ओनर का आपको समझ आ रहा होगा कि कैपिटल क्या होता है, अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग या कॉमर्स से रिलेटेड है तो कैपिटल और लेबर की फोर्स अगर हम बढ़ाएंगे, ओनर्स इक्विटी जिसे हम कहते हैं, लेबर को ओनर्स इक्विटी, इजीली आपको समझ आ गया होगा कि क्या मतलब हुआ इसका कैपिटल का। तो अगर जैसे ही हम अपना कैपिटल या लेबर फोर्स बढ़ाएंगे, जो हमारे जर्नली या यूजुअली क्या होता है कि हमारा इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन खुद ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, इसका छोटा सा मीनिंग है। ये मैंने आपको उर्दू में थोड़ा सा समझा दिया कि एक कंपनी में अगर अगर फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी की लेबर फोर्स और कैपिटल एक साथ बढ़ाएंगे, तो हमें पता है कि जितना हम लेबर और कैपिटल इंक्रीज करेंगे उस उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, और उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल एफिशिएंटली, इसको ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, एफिशिएंटली हम लोग यूज़ करेंगे और इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। और इससे क्या होगा कि इंक्रीज होगा हमारे प्रोपोर्शन, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो यू होपफुली आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। फिर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। तो फर्स्टली द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न सेट्स इन ऑन अकाउंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट of the improved organization of a business enterprise। जो जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है डेफिनेशन में कि इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए लॉ ऑफ इंक्रीजेशन हम लोग देखते हैं, और इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए हम बनाया गया है कि जितना ज़्यादा इसके अंदर आप देख रहे होंगे कितने जितना ज़्यादा लेबर फोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव हो रही है और उसका ऑपरेशन भी इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं। तो इसकी जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है, सेकेंडली आप लोग इसको पॉइंट वाइज भी या बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हैं। मैंने दो पैराग्राफ्स या दो लाइंस में ऐसे इसको लिखा हुआ है देख करके। So secondly, the law operates in those industries which are not engaged in raising raw material products. In other words, the law operates in manufacturing industries। मतलब जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड था, उसके अंदर हम लोगों की बहुत सारी ऐसी एजम्पशंस और एक्सेप्शंस थी जिसके ऊपर वर्क कर रहे थे, जिसके ऊपर अगर हमारी वो एक्सेप्शन या एजम्पशंस थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती थी तो हमारा लॉ जो है वो ऑपरेट प्रॉपरली नहीं होता था। इसके अंदर भी यही है कि लॉ जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ऑपरेट के अंदर, और अदर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर, जैसे शान है हमारे जो मसाले वगैरह प्रोडक्ट का एक रॉ मसाले लेके उसको फिर एक प्रॉपर पैकेजिंग और उसको बॉक्सेस के अंदर फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी। तो इसके रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज हैं। इसके अंदर यूनिलीवर हो गई, शान हो गई, नेशनल हो गई, बहुत सारी ऐसी अनलिमिटेड कंपनीज है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। तो उसकी एग्जांपल है कि हम लोग उसकी लेबर फोर्स जब भी बढ़ाते हैं तो एफिशिएंट वे में लेबर वर्क करते हैं, और हमारी जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता या ऑपरेट नहीं होता किसके अंदर? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में, माइनिंग या फिशिंग इंडस्ट्रीज में, या
फॉरेस्ट्री इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर में। तो ये इसकी एजम्पशन या एक्सेप्शन हो गई कि ये इसके अंदर यूज नहीं होता। अब इसका हम जल्दी से शेड्यूल देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने आ, सबसे पहले क्या चीज ली है, यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। हमने सबसे पहले लिया लैंड, क्योंकि लैंड जब भी हम लैंड कोई भी हम बिजनेस ओन करते हैं, उसके अंदर जो लैंड हम लोग लेते हैं तो वो हमेशा फिक्स्ड होती है। अब लैंड आगे पीछे या ऐसा नहीं होता कि हम लैंड बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है, कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि लैंड एक फिक्स हम लोग एक जगह लेते हैं, वो उस उतनी ही रहती है, उससे ज्यादा ना बढ़ती है ना कम होती है। तो यहाँ पे भी सेम है कि लैंड एक एज अ फिक्स फैक्टर हम लोग लेते हैं उसको। तो हमने फिक्स फैक्टर लिया है, मैंने फॉर एग्जांपल लैंड ले लिया है। उसके बाद मैंने वेरिएबल फैक्टर्स लिए हैं। वेरिएबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कैपिटल और लेबर, जो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वेरिएबल उसको कहते हैं। जो ये ज्यादा या कम होते रहते हैं, वेरिएट करते रहते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे हम कहते हैं, नॉर्मली लैंड लेबर, लैंड को हटा के, लैंड तो फिक्स है, लेबर कैपिटल, तो ये सारी चीजें हमारी वेरिएबल फैक्टर हो गए। फिर हमारा टोटल आउटपुट एंड मार्जिनल आउटपुट। तो फिक्स फैक्टर हमारी लैंड हो गई 5 एकड़, और वेरिएबल फैक्टर हो गया, हमने पहले हमारा वेरिएबल फैक्टर था 1, या फर्स्ट हमने जब वेरिएबल फैक्टर लगाए तो हमारा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था 50, और हमारा मार्जिनल आउटपुट नन था, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। और मार्जिनल किसे कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं किसी भी एक्स्ट्रा चीज को या एडिशनल चीज को हम अगर इसके हम बेसिक या नॉर्मल लिटरल मीनिंग देखें तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। तो अगर हमारी एक हमने लेबर फोर्स लगाई और एक मतलब हमने फर्स्ट जो हमारा कैपिटल और लेबर लगाया, तो उसने आउटपुट तो प्रोड्यूस किया, लेकिन उसने कोई एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया। फिर हमने जैसे ही हमारी ये सारी चीजें जो फिक्स ही रहेंगी, क्योंकि लैंड तो ग्रो नहीं करती, जैसे हम लोग कैपिटल या लेबर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एक हमने 5 एकड़ की जमीन ली है, तो कहीं अब वो हम लोग अगर नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो वो 6 एकड़ की नहीं होगी, क्योंकि हमने एक ही लैंड, एक पोर्शन हमने परचेज किया है, तो वो उतना ही रहेगा, वो कोई इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की और अलग ले लिया, वो फिर बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाएगी। लेकिन फिक्स फैक्ट है कि अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि लैंड जो है वो एक फिक्स फैक्टर है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती। तो हमारे हमने देखा लैंड तो हमारी फिक्स चल रही है, लेकिन जैसे हमारा वेरिएबल फैक्टर जो मैंने बताया था कि इंक्रीज हुआ, हमने 1 से 2 लेबर फोर्स या हमने कैपिटल सेकंड हमने जो अपना लेबर फोर्स लगाया, उसके अंदर क्या हुआ कि हमारा ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया, मतलब हमने लेबर या कैपिटल इंक्रीज किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, और उससे फिर क्या हुआ कि हमारा एडिशनल आउटपुट भी प्रोड्यूस हुआ, मतलब हमने ज्यादा लेबर फोर्स लगाई तो हमारा ज्यादा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, और उससे क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी वर्किंग की वजह से हमारा मार्जिनल आउटपुट भी मतलब जनरेट हुआ, मतलब एडिशनल हमें चीजें भी मिली। मतलब एक हमने नॉर्मल एक एवरेज लगाया हुआ था कि टोटल हमारी प्रोडक्शन जो होगी वो 11,000 यूनिट्स होगी। हम लोग इसको एज ए 1000 यूनिट्स ले लेते हैं। तो हमने सोचा था कि हमारी 11,000 टोटल यूनिट प्रोडक्शन होगी हमारी, और हमने लेबर फोर्स जैसी इंक्रीज की, तो उससे क्या हमें फायदा हुआ कि हमारी टोटल प्रोडक्शन हमारी एवरेज से मीट तो हो गई, उससे और क्या फायदा हुआ कि हमारे एडिशनल भी आउटपुट हमारे लेबर्स ने जनरेट किए, क्योंकि एफिशिएंट वे में वो वर्क कर रहे थे। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ आई होगी कि जैसे ही हमने लेबर फोर्स और अपना कैपिटल इंक्रीज किया, तो हमारी टोटल आउटपुट भी बढ़ी, मतलब हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट भी मीट हुई, उसके साथ साथ हमारा एडिशनल आउटपुट भी बढ़ा, मतलब एक्स्ट्रा भी लेबर ने काम किया, और 110 से भी ज्यादा, मतलब 110 से 60% ज्यादा हमारा लेबर ने प्रोड्यूस किया। तो होपफुली ये वाली बात भी आपको इजीली समझ आई होगी कि मैंने आपको क्या बताया है। फिर थर्ड पे भी यही हो रहा है कि हमारा हमने फिर लेबर फोर्स इंक्रीज किया, तो हमारा 180 जो है वो हो गए टोटल आउटपुट, और 70% हमारा मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज हो गया। अच्छा, आप लोगों को अगर वैसे ये टेबल मैंने कैलकुलेटेड वे में बनाया है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि
यहाँ हमारा टोटल आउटपुट 50 था। 10 क्या हुआ, 50 से हमारा 60 कैसे हुआ इंक्रीज, 60 हो गया, मतलब 10%। हमारा 10 हमारा मार्जिनल आउटपुट था, मतलब इसको और इसको हमने माइनस किया, तो हमें पता चल गया कि 10 जो है हमारा मार्जिनल आउटपुट था। क्योंकि हम लेबर फोर्स इंक्रीज करेंगे तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि लेबर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो एक लेबर अगर 10 50 प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ये 50 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो दो लेबर्स 100 बनाएंगे। तो उसने लेबर ने ऐसे एफिशिएंटली वर्क किया कि 10 जो है, एक लेबर ने 50 बनाया, दूसरे लेबर ने भी 50 बनाया, और उसने इन दोनों के एडिशनल, इन दोनों ने 5 5 यूनिट्स और एडिशनल बनाए, तो इस तरह हमारा 10 जो है टोटल हमारा मार्जिनल आउटपुट बना। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ आई होगी। देन हमने फोर्थ जब अपना लेबर और कैपिटल इंक्रीज किया तो 260 हमारा बना, और इसके अंदर 80 हमारा मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज हुआ। तो देन हमारा फिफ्थ पे जो है, हमने अपना लेबर फोर्स इंक्रीज किया, तो फिर क्या हुआ कि हमारा फिर से जो है वो टोटल आउटपुट भी इंक्रीज हुआ 350 से, और हमारा मार्जिनल आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, मतलब पहले 260 था, फिर 350 हुआ, तो इसके अंदर 90 हमारा जो है वो मार्जिनल आउटपुट है, और बाकी जो हमारा है वो टोटल आउटपुट है। तो होपफुली समझ आ गया होगा। फिर इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि वाई एक्सिस पे हमारा है मार्जिनल आउटपुट, ये वाला चार्ट, और एक्स एक्सिस पे हमारे कैपिटल और लेबर है, जिसे हम वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन में समझाया था। तो हमने इस तरह का चार्ट बना ले रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे समझने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमने यहाँ एक जब फर्स्ट लेबर फोर्स लगाई तो हमारा, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट लगाई तो हमारा 50 हमें आउटपुट मिला। फिर जैसे ही हमने इंक्रीज की लेबर फोर्स 2 पे की तो हमारा 60 हो गया। देन हमने थर्ड अपनी लेबर फोर्स इंक्रीज की, मतलब तो 70 हो गया। ये आपको मार्जिनल एंड वेरिएबल दोनों का इजीली आपको समझ आ रहा होगा कनेक्शन क्या है। तो इस तरह ये हमारा जो कर्व बनेगा ये ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा, कि जितना हम लेबर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं उतना हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर हमारी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जिससे हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जब एडिशनल आउटपुट बनेगा तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फिर हमारा सप्लाई ज़्यादा होगी, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारी प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकेगी, और फिर क्या होगा, उससे प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अच्छा, इसका रेप्लिका एक लॉ होता है, जिस जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो हम वो भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है, उसको हम फिर उसको भी काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। According to Alfred Marshall, an increase in labor and capital applied in cultivation of land causes in general less than a proportion increase in the amount of produce raised, until it happened to coincide with an improvement in the arts of agriculture. With the continued use of land and its fertility goes on diminishing. Therefore, output goes diminishing. This will also called law of increasing cost, because the marginal product diminish and the marginal cost increases. अच्छा, ये वाले लॉ में क्या हो रहा है, एक तरफ तो हमने ये देख लिया हम लोगों की हर चीज की टू साइड्स होती हैं। अब हमने देखा लेबर के इंक्रीज होने से हमारा मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब इसका दूसरा फेज भी देखते हैं कि और क्या क्या हो रहा है इससे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में एल्फ्रेड मार्शल ये बताते हैं कि लेबर फोर्स के इंक्रीज होने से और कैपिटल के इंक्रीज होने से क्या हमारा नुकसान हो रहा है। जब हमने कल्टीवेशन ज्यादा की और एक लैंड पे वर्क ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम एक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, जैसे हम शान फूड्स की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपरली इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फिर वो उसको एक प्रॉपर मसाले में उसको
बना के उन सब चीज़ों को मिक्स अप करके उसको एक मसाले में बना के फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग करके उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे हमारी मार्केट के अंदर। तो जैसे अगर हमारी इसकी मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो एक तरह से हम देखा जाए तो अगर एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारी लैंड हम ज़्यादा उस पे कल्टीवेशन या इंक्रीज करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब एक वक्त आता है कि वो जमीन जो है वो बैरन हो जाती है ऐसा। मतलब अगर वैसे देखा जाए, कल्टीवेट हम कोई भी चीज उगाते हैं, वीट राइस कोई भी हमारी फील्ड है और वो हम उगाते हैं एक वक्त ऐसा आता है कि वो लैंड जो है वो barren हो जाती है, कि उसकी कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है कि वो कोई चीज ग्रो कर पाए। तो इनके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि हर चीज की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो फिर टर्न इनटू डिमिनिश, मतलब वो तेजी से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। मतलब हमने यूजुअली भी देखा होगा कि जो हम होम प्लांट्स या यूज करते हैं और अपने घरों में जो हम यूज कर रहे होते हैं प्लांट्स, उसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि अगर हम बहुत दिनों तक एक पॉट के अंदर एक हम लोग वो अ, डाल के रखते हैं मट्टी या फिर सॉइल जो होती है, और वो अगर हम यूज ना करें तो वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और देन उसके अंदर हम कोई भी सीड डालें या कुछ भी करें तो वो ग्रो नहीं करता, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर वो और फर्टाइल नहीं रहती, मतलब उसकी ग्रोइंग पावर खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर भी यही कह रहे हैं कि एक लिमिट तक हमारी जमीन भी चीजें प्रोड्यूस या अ, हमारी ग्रो करती है, फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो फिर गिरना शुरू हो जाती है। मतलब वो फिर उगाना कम कर देती है। होपफुली ये वाला आपको बात समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो प्लीज आप लोग क्यूरी अभी हमारा जो सेशन होगा 10 मिनट्स का उसमें पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग वहाँ पर यूट्यूब या किसी और इसके अंदर देख रहे हैं प्लेटफॉर्म से, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। तो होपफुली ये वाली बात आपको समझ आई होगी, और इसकी जो लास्ट लाइन लिखी है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीजिंग कॉस्ट, क्योंकि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। अब एक जमीन पे हम सीड्स डाल रहे हैं, अब उसके अंदर हम लोग हर चीज डाल रहे हैं कि वो अच्छी तरह ग्रो हो जाए, और वो ग्रो नहीं हो रही, तो हमारी इसके अंदर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो डिमिनिश हो जाती है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज पे अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं कि वो हमारी चीज ग्रो करे, लेकिन वो चीज प्रोडक्ट बनने के बजाय हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं मिल रही, तो इसलिए इसको हम लोग इंक्रीजिंग कॉस्ट या ही कहते हैं। हमारी कॉस्ट जो है इसके अंदर इंक्रीज हो रही होती है। तो अगर एग्जाम में इंक्रीज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट के नाम से भी आए तो आप लोग इसको पहचान जाइएगा, और ये वाला लॉ प्लीज मत लिखिएगा क्योंकि ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है और ये है डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इसका दूसरा जो सेकंड नेम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, की उसके अंदर कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। तो ये हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन थी। अब इसका हम शेड्यूल देख लेते हैं कि इसका शेड्यूल क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर। जैसे ऊपर भी मैंने बताया था, लैंड लैंड फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, मतलब ये एक फिक्स चीज है, ये मूवेबल नहीं होती या इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती। एक चीज हमने अगर खरीद ली, परचेज कर ली, तो लैंड ऐसा नहीं है कि मतलब वो खुद ब खुद ग्रो हो के वो ज्यादा से ज्यादा मतलब बढ़ती चली जाए। हमने 5 एकड़ खरीदी और 10 साल बाद वो 10 एकड़ में वो मतलब बन गई, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एक लैंड जितनी आपने पोर्शन खरीदे वो उतना ही रहता है। तो इसलिए हम लोग, मैंने एग्जाम्पल में भी फिक्स फैक्टर लिखा है। तो लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, उसके बाद यूनिट्स ऑफ वेरिएबल लैंड लेबर है, तो जैसे लैंड लेबर सॉरी कैपिटल एंड लेबर है। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि वेरिएट करता है, इसलिए हम लोग इसे वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद टोटल आउटपुट और मार्जिनल आउटपुट है। तो लैंड तो हमारी फिक्स रही 5 एकड़, क्योंकि ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही। उसके बाद हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें देखते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
लैंड या लेबर हमारा 1 था, तो हमारा टोटल आउटपुट 200 था, मार्जिनल आउटपुट भी 200 था। फिर हमने अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया, लेबर और कैपिटल बढ़ाया, तो हमारा आउटपुट भी बढ़ा और मार्जिनल हमारे 300 से बढ़ा। पहले 200 था, फिर 300 इसमें प्लस किया तो 500 हो गया। फिर हमने जब तीसरी दफा अपना आउटपुट बढ़ाया, मतलब यूनिट्स बढ़ाए लेबर और कैपिटल के, तो फिर हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज होके 400 पे चला गया। फिर जब हमने फोर्थ पे अपना लेबर और कैपिटल बढ़ाया, तो हमारा टोटल आउटपुट तो 1200 बना, लेकिन मार्जिनल आउटपुट बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिफ्थ से हम हमारा टोटल आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हो गया, कि ज़्यादा लेबर फोर्स थी, तो ज़्यादा हमने हर एक को हमने एक प्रॉपर टास्क दिया कि आपने इतने यूनिट्स बनाने हैं, तो अब वो इतने यूनिट्स बना तो रहे हैं, लेकिन मार्जिनल आउटपुट क्या हो रहा है यहाँ पे, कम होना शुरू हो गया। मतलब थर्ड वाले हमारा जो केस था उसके अंदर मार्जिनल आउटपुट वाज ऑन इट्स पीक। देन क्या हुआ, फोर्थ के ऊपर हमारा मार्जिनल आउटपुट जो है वो डिक्रीज होने शुरू हो गया। मतलब अब लेबर फोर्स और कैपिटल के इंक्रीज होने से भी हमारा मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसका फायदा नहीं है आप, क्योंकि चाहे आप लेबर भी इंक्रीज कर लें, कैपिटल भी इंक्रीज कर लें, कि एक पॉइंट जरूर ऐसा आता है कि हमारा जो मार्जिनल आउटपुट है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि जैसे जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो वैसे ही हमारी जितना हम लेबर फोर्स इंक्रीज कर लें उतना उनका मार्जिनल आउटपुट भी एक पॉइंट आता है कि वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो हम फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में देख रहे हैं कि हमारा पहले 100 से डिक्रीज हुआ मार्जिनल आउटपुट, टोटल आउटपुट इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन मार्जिनल आउटपुट हमारा साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। देन हमने जब सिक्स लेबर फोर्स लगाई, तो हम देख रहे हैं हमारा लेबर और मार्जिनल आउटपुट, तो टोटल आउटपुट तो हमारा इंक्रीज हो, टोटल आउटपुट फिर अपने कांस्टेंट पे रहा। मतलब ना टोटल आउटपुट इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, वो फिर एक कांस्टेंट नंबर पे चला गया। तो और इसके अंदर मार्जिनल आउटपुट का क्या हुआ कि वो अपने मिनिमम पे चला गया। मतलब बिल जितनी लेबर फोर्स और कैपिटल भी हमने बढ़ाई, तो अगर एफिशिएंट वर्कर्स हमने नहीं रखे और हम लोग अपने अपॉइंट किए चले जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि इनएफिशिएंसी हो रही है और हमसे मैनेज नहीं हो रहा। और इससे क्या हो रहा है कि टोटल आउटपुट भी हमारा एक कांस्टेंट हो गया और मार्जिनल आउटपुट हमारा बिल्कुल मिनिमम पे चला गया। तो होपफुली ये वाली बात भी समझ आई होगी कि एक लिमिट के बाद अगर हम लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ाना शुरू करते हैं, फिर वो डिक्लाइनिंग की तरफ चली जाती है। तो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया है मार्जिनल आउटपुट, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कैपिटल एंड लेबर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हमारा मार्जिनल आउटपुट पहले 200 था, 300, देन 400 हुआ, फिर 400 के बाद वो 500 पे नहीं गया। मतलब एक लिमिट के बाद हमारा मार्जिनल आउटपुट डिक्लाइन की तरफ चला गया, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। और हमारा लेबर और कैपिटल हमने जितना भी यहाँ इंक्रीज कर लिया, हमारा जो मार्जिनल आउटपुट था वो बजाय इंक्रीज होने की लेबर फोर्स की वजह से डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी आप लोगों को इजीली, इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न इजीली समझ आया होगा। इसको इसके दो नाम हैं, मतलब इसको इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं और इसको हम इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। तो आज के हमारे ये दो टॉपिक थे। इसके बाद हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है पीपीसी या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो आए हम देखते हैं, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है और सीए सीसीए या ON11 के बच्चों के लिए वो जो बेसिक वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या बेसिक जिन्हें नहीं पता होती उनके लिए बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि पीपीएफ represent a contribution of two alternative goods an economy can produce with available resources.
तो इसके अंदर क्या है, आउटपुट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स। तो हम लोग इसको पीपीएफ क्या है, पीपीएफ रिप्रेजेंट्स कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन बताता है दो गुड्स का कि एक अगर हम गुड्स लें, जैसे अगर हम नॉर्मली देखें, अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 रुपीज हैं, और हमने उसके अंदर अपने कपड़े भी लेने हैं, और अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी किसी बर्थडे पार्टी में जाना है या किसी की हमने वेडिंग सेरेमनी अटेंड करनी है, तो उसके अंदर हमें एक लिमिटेड अमाउंट दी गई कि आप जो हमें लिमिटेड अमाउंट दी गई कि आपने इसके अंदर ही शॉपिंग करनी है, जैसे 15,000 या 20,000। तो अब क्या है, इसके अंदर हम किस तरह से इसको एलोकेट करेंगे और किस तरह से अपनी चीज़ों को हम लेंगे कि हमें दोनों चीज़ें मिल जाए। हमने क्या-क्या लेना है, हमने एक अपने लिए एक फॉर्मल अपने कपड़े भी लेने हैं, और हमने उसके साथ-साथ उसकी ज्वेलरी एंड हमने शूज़ भी लेने हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो अब हमारे पास 20 या 30,000 रुपीज़ हैं। अब हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, उसको हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है कि हमें तीनों चीज़ें मिल जाएँ। तो हम ऐसा करेंगे कि 10,000 का हमने अगर एक कपड़े ले लिए, और बाकी हमारे जो शूज़ बचे, हमने 7-8,000 के शूज़ ले लिए, और बाकी ज्वेलरी वगैरह हमने 5 या 6,000 की ले ली। तो हमारा ओवरऑल जो देखा जाए तो हम लोग अपने सारा जो एक्सपेंसेस है वो उसके अंदर कर लिया। तो अगर वैसे अगर देखा जाए दूसरी तरफ, कि अगर हमने 20 या 30,000 के एक कपड़े ही ले लिए, और बाकी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, तो फिर हमें मतलब हमने प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया एक चीज़ को। तो दो हमारे पास या तीन हमारे पास इसके अंदर, चले दो चीज़ें ले लेते हैं, एक फॉर्मल कपड़े और शूज़। तो अगर हमने एक 20,000 के कपड़े ले लिए और हमने उसके शूज़ नहीं लिए, तो हमने अवॉइड कर दिया, हमने शूज़ नहीं लिए और हमने कपड़े ले लिए, तो हमने यूटिलाइज़ नहीं किया। तो हमें ऐसे और 2 अल्टरनेट गुड्स को लेना है कि हमें दोनों वो गुड्स मिल भी जाएँ और हमारी यूटिलाइज़ भी हो जाएँ वो गुड्स, हमारे जितना हमें लेना था वो हमें गुड्स भी मिल जाएँ, और एक मतलब एक टोटल हमने जो बजट या एक्सपेंस बनाया हुआ था कि 10 या 20,000 का, उसके अंदर हमारी दोनों चीज़ें आ जाएँ। तो हमने क्या करना है फिर, अगर हम लोग 20,000 के सिर्फ़ कपड़े ही ले लेंगे तो हमें शूज़ नहीं मिलेंगे, तो हम लोग फिर नहीं ले पाएँगे, तो हमने सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम 10,000 की कपड़े ले लेंगे, और बाकी जो पैसे बचेंगे उसके हम शूज़ ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें की कंट्रीब्यूशन हो गई, मतलब हमने एक नॉर्मल किस्म के फॉर्मल कपड़े ले लिए, और उसके साथ-साथ हमने शूज़ भी ले लिए। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई, और हमारे गुड्स जो हैं वो प्रॉपर्ली रिसोर्स हमने एलोकेट कर लिए, मतलब दोनों की कंट्रीब्यूशन हो गई। लेकिन अगर हम ये करें कि एक चीज़ ले लें और दूसरी चीज़ ना लें, तो फिर हम मतलब ऑल्टरनेट, हमें अगर दोनों चीज़ें लेनी है तो हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, और उसकी एक प्रॉपर एलोकेट करना पड़ेगा प्राइस, कि अगर हम इतने बजट के अंदर एक चीज़ लेंगे, तो दूसरी चीज़ के अंदर हमें अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, हम अभी आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बस थोड़ी देर बाद, तो हमने किस तरह से उसको एलोकेट करना है और उसकी किस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी। तो होपफुली ये वाली बात आपको समझ आई होगी एग्जाम्पल के थ्रू कि इसके अंदर क्या है। तो डायग्राम देखने से पहले हम इसका स्केजुअल देख लेते हैं कि इसका स्केजुअल क्या है। तो हमारे पास दो गुड्स हैं, एक्स और वाई। तो अगर हम वैसे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दी है, तो अगर हम वो वाली एग्जाम्पल आगे लेके चले कि हमने कपड़े लेने हैं, मतलब एक फॉर्मल ड्रेस लेने हैं, देन हमने एक शूज लेने हैं, तो हम गुड्स एक्स को फॉर्मल ड्रेस ले लेते हैं और गुड्स वाई को हम शूज ले लेते हैं। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, ये ABCDEF हम लोग पॉसिबिलिटीज इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं एज एन एग्जांपल समझाती हूँ, फिर आपको नॉर्मली भी समझा दूंगी। तो हमने क्या किया कि सिर्फ हमारे पास जैसे टोटल बजट था 25,000, ठीक है। और हमने क्या किया कि गुड्स बाय ले लिए, मतलब हमने नाइकी से जाके 25,000 के शूज लेके आ गए हम। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो हमारा ड्रेस था फॉर्मल वो रह गया, और इसकी कोई हमें मतलब जीरो, हमने वो ड्रेस ही नहीं लिया और हमने सिर्फ शूज ले लिए, तो जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिली, ठीक है।
हमने दूसरी क्या पॉसिबिलिटी बनाई कि हम क्या करते हैं कि 24,000 के हम लोग शूज ले लेते हैं और 1,000 का हम लोग कोई ड्रेस ले लेते हैं। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? एक वन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी। मतलब एक चीज को हम एक पैसों को या एक चीज को सेक्रीफाइस जिसको हम कर रहे हैं उसको सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब हमें कोई बहुत अच्छे 25,000 के नाइकी एडिडास के शूज अच्छे लग रहे थे और हमने उसको नहीं लिया, बल्कि हमने कोई मतलब दो कैटेगरी के या किसी और ब्रांड के शूज ले लिए। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे गुड्स की तरफ भी हम लिया, हमने दूसरे गुड्स भी प्रोडक्ट भी परचेज की। तो उससे क्या हुआ कि 1,000 जो हमने सेक्रीफाइस किए ना उस शूज के ऊपर, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मतलब एक चीज को सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट। तो अब दूस पॉसिबिलिटी सी क्या हो सकती है? अब हम लोग पॉसिबिलिटीज बनाते हैं ना कि अगर हम इस तरह अपने पैसे अपने एक्सपेंसेस करें तो इस तरह हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो हमने पॉसिबिलिटी सी क्या बनाई कि अगर हम 21,000 मतलब और कम हम लोग कर लें अपने शूज की कॉस्ट, मतलब किसी और ब्रांड से जाके हम ले लें, बाटा या कहीं और से सर्विस वगैरह से, और नाइकी और एडिडास को हम स्किप कर दें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम गुड एक्स को भी हम परचेज कर सकते हैं, मतलब गुड एक्स की जो प्रोडक्ट है वो भी हम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने ये 21 पे हम लोग 21,000 पे है तो हमें टू जो है हमारी, हमने 2 रुपए मतलब सेक्रीफाइस किए ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने 25 से हम लोग कितने नीचे आ गए, 3% नीचे आ गए। तो यहाँ दिख रहा होगा 1/3। तो हम लोग सेक्रीफाइस मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम करते करते हम लोग 21 पे आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर हम कम प्राइस के अगर शूज लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें कपड़े भी मिल जाएंगे। अगर हम नॉर्मली देखें तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आ रही होगी कि अगर हम कम प्राइस के शूज परचेज करेंगे तो हमें उसमें कपड़े भी मिल जाएंगे जो हमारे हमने 25,000 का बजट बनाया था। तो उसके बाद हम लोगों ने और पॉसिबिलिटी डी क्या हो सकती है कि हमने और अपनी कम की, मतलब हमने शूज 16,000 के ले लिए and हमने 3,000 के हमने कोई कपड़े ले लिए। तो फिर हमारी पॉसिबिलिटी ई क्या होगी कि हम लोग और कम कर दें अपने गुड बाय की, जो हम और गुड बाय सेक्रीफाइस कर दें तो हमारा एक गुड की हम लोग प्रोडक्शन मतलब एक गुड्स की जो है कॉस्ट कम करें तो दूसरी गुड्स जो है हम लोग उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रही है, मतलब दूसरी गुड हम ज्यादा परचेज कर पाए। मतलब अगर हम 9,000 के शूज खरीद रहे हैं तो 4,000 के हम लोग कोई कपड़े खरीद सकते हैं। तो ये जो हमारा 7% हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है उसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि 7 क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं पहले हमारी 0% और हमारा गुड बाय हम लोग परचेज कर पा रहे थे। देन हमने जैसे जैसे गुड बाय को हमने कम प्राइस में खरीदना शुरू किया तो गुड एक्स जो है वो खुद ही हमारा इंक्रीज होना शुरू हो गई। मतलब हमारी पॉसिबिलिटी बनी कि हम वो भी परचेज कर पा रहे हैं और ये भी परचेज कर पा रहे हैं, लेकिन वो कम प्राइस में अगर वो परचेज कर रहे हैं तो ये उससे क्या हो रहा है कि हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी परचेज हो रही है। और वो जो कम प्राइस पे हम परचेज कर रहे हैं उससे जो हम अपना पैसे सेक्रीफाइस या अमाउंट जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। और वैसे अगर आपको इसको फॉर्मूले यूज करके, जो हमारा फॉर्मूला है नॉर्मल, वो यूज करके निकालना हो तो गुड या कोई भी चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन वाई, हम ये भी यूज कर सकते हैं। इससे भी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल सकती है। तो अगर हम देखें तो 4/9 तो 1/7 हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओवरऑल आ रही है। और अगर आपको वैसे मैंने जैसे अभी आपको समझाया है वो वाला अगर आपको समझ आए तो वो भी आप वैसे भी कर सकते हैं कि नॉर्मली हम पहले देख रहे हैं कि 1 से हमारी कितनी कम होगी, 5 9 पे चली गई। फिर अगर हम इसको टोटल करें तो 9 हमारी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बने। फिर एक लास्ट में ऐसा हमारा एक फेज आएगा कि जो हमारी पॉसिबिलिटी एफ है, हमारी गुड एक्स तो हम पूरी पूरी प्रोड्यूस वो परचेज कर रहे हैं, लेकिन हम गुड बाय जो है वो बिल्कुल भी परचेज नहीं कर रहे, जीरो हो गई। मतलब एक चीज हम ले ही नहीं रहे, मतलब शूज हमने स्किप कर दी और हम अब सिर्फ ड्रेस के ऊपर अपना वो हमने पूरा फोकस कर लिया। तो गुड बाय जो है जीरो हो गई। और
गुड एग्स जो है हमारी वो 5 हो गई, मतलब ये अपने मैक्सिमम पे चली गई और गुड बाय जो है अपने मिनिमम पे चली गई। तो इस तरह हमारा पॉसिबिलिटी जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो हो गई, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1/9 हो गई। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ आई होगी कि किस तरह हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, और टोटल अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते किसको हैं। तो इसकी लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है, हमने एक साइड पे ले लिया गुड एक्स या एंड गुड वाई, वाई एक्सेस पे हमने गुड्स वाई ले लिया, एक्स एक्सेस पे हमने गुड एक्स ले लिया। उसके अंदर क्या हो रहा है, टेबल के थ्रू ही अगर हम देखें तो जब हमारी 25 थी गुड वाई, तो हमारी गुड एक्स जो थी वो 0 थी। तो ये देखें यहाँ से यहाँ हमारा, मैंने लाइंस नहीं बनाई, ओवरऑल आपको ऑब्वियस होगा कि यहाँ से ही 25 से हमारा गुड एक्स 0 था। फिर जब हमने 1 लगाई तो यहाँ से हमारी जो ए बी सी डी मैंने नेम दिए हुए हैं, तो हमारी जब 2 थी तो ये फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ। फिर एक पॉइंट आया कि हमारी गुड एक्स जो है अपने मैक्सिमम मतलब 5 पे थी, और हमारी जो गुड वाई है वो 0 पे थी। और तो नॉर्मली अगर आप लोगों ने मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो उसके रूल होता है कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस 0 होता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा हुआ है, तो ये लाइन वैसे ओवरऑल 0 कहलाती है। ये जो लाइन हमारी है ये 0 पॉइंट कहलाती है, न्यूट्रल लाइन होती है, यहाँ पे हर चीज 0 होती है। तो एक्स एक्सेस पे वाई 0 होता है तो यहाँ गुड वाई 0 है, और वाई एक्सेस पे एक्स 0 होता है तो 25 पे एक्स 0 था, मतलब गुड एक्स 0 थी। तो इसके अंदर ये जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर हम देखते हैं, ये मैंने लाइन एक बनाई है। मतलब पहले हमारी नॉर्मली हम देख रहे थे कि हमारी ग्रोथ जो हो रही थी, रियल ग्रोथ मैंने यहाँ लिखा है। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना पूरा ओवरऑल। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें किसी चीज़ की, वो तो एक एग्जांपल थी कि अगर हम एक चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे दो डिफरेंट प्रोडक्शन हो रही है एक कंपनी के अंदर। अगर हम देखें एक यूनिलीवर की अगर बात करें तो एक तरफ वहाँ किसी शैम्पू ट्रेस्मी वगैरह की प्रोडक्शन हो रही है, और दूसरी तरफ वो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट या जैसे बहुत सारे फेयर एंड लवली या इस टाइप की चीज़ें हैं। तो वो बिल्कुल डिफरेंट एक प्रोडक्ट है, तो उन दोनों प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर हम 25% हम लोग शैम्पू या ट्रेस्मी की हम लोग प्रोडक्शन करें, तो 0% हमारी जो है वो फेशियल या ब्यूटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी हमारी इंक्रीज हो रही है। फिर जैसे जैसे हम लोग एक चीज कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हमने शैम्पू कम प्रोड्यूस करने शुरू कर दिया, और हमने उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी फेयर एंड लवली की या किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गई। तो वो हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन हमारी पॉसिबिलिटी कर्व आप बनता है। तो नॉर्मली कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूज हो रहा होता है कि अगर हम एक चीज को सैक्रिफाइस करें, मतलब एक प्रोडक्ट को कम बनाएं और दूसरी, ताकि उसकी उसी के अंदर कंपलसेट होकर दूसरी प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाए, तो उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। और इसके अंदर रियल ग्रोथ क्या हो रही है कि पहले पॉइंट जी पे हमारा था प्रोडक्शन कर्व, फिर हमारा एच पे, फिर आई पे, इस तरह क्या हो रहा है, रेल ग्रोथ कैसे हो रही है कि यहाँ पे जो है हमारा जो हमारा लैंड और लेबर और कैपिटल था, वो फुल कैपेसिटी दे रहे थे हमारी प्रोडक्शन को, मतलब फुल एफिशिएंट वे में काम कर रहे थे यहाँ पे। और इसके अंदर ये जो आई पॉइंट है इसके अंदर भी हमें फुल लेबर एंड कैपिटल पूरा हमें मिल रहा था आई पर पॉइंट पे। लेकिन अगर आई से आगे कोई पॉइंट होता तो उससे क्या होता है कि ये बाहर एफिशिएंसी से बाहर चला जाता, मतलब स्कार्स सिटी की तरफ चला जाता, मतलब जितनी हमारी रिसोर्स थी उसके अंदर रहते हुए हमने जो ग्रोथ की, इसलिए इसको रियल ग्रोथ पॉइंट जी को कहा है कि हमारी प्रॉपर जो रिसोर्स थी इसको एलोकेट किया और एफिशिएंट वे में हमने यूज किया, इसकी वजह से हमें रियल ग्रोथ मिली, जिसकी वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा जी पॉइंट से एच पॉइंट पे आया होगा, देन एच पॉइंट पे हमारा आई पॉइंट पे आया, जिसके अंदर हमारी एफिशिएंसी अपने पीक पे थी और हमारे रिसोर्सेज वगैरह फुल यूटिलाइज हो रहे थे। लेकिन आई पॉइंट से जैसे ही हमारा पॉइंट आगे जाएगा
तो इससे क्या होगा कि हम लोगों की स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बीच में आ जाएगी। तो हम आई पॉइंट से आगे नहीं जा सकते जब तक हमारे रिसोर्सेज फुल हमें और मतलब ना रिसोर्सेज प्रॉपरली मिल जाए। लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसके अंदर हमने प्रॉपर एलोकेशन की तो हमारी रियल ग्रोथ कुछ इस तरह हुई कि प्रॉपरली एफिशिएंट वे में हमने अपने रिसोर्सेज जो स्कार्स रिसोर्स थे उसको यूटिलाइज किया। इसकी वजह से हमारे रिसोर्स जो है वो रियल ग्रोथ हुई और आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट जी से एच और एच से आई की तरफ चली गई। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे, ये भी आप लोगों को क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से डिमिनिशिंग रिटर्न होता है और किस तरह से हमारा प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यूज होता है। तो यहाँ हमारा हम लोग अपना क्लास वाइंड अप करते हैं, अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए डीके स्टडी अब से आई एम लॉगिंग ऑफ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।